G20 समिट को लेकर इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधा हम रुख कर लेते हैं। Almost 40 events were done on issues which are relevant to people's lives. Based on these deliberations over the course of the year, these recommendations have now been placed for consideration of the leaders. They would be discussing it over the course of next 2 days, and then we will have definite outcomes and we will all share with you. Thank you. Thank you very much, sir. May I request Shri Harshvardhan Shringla, Chief Coordinator, sir. Namaskar and good afternoon. The focus of today's press conference is on the G20 New Delhi summit. But since many of our media friends have joined us only today, I'll briefly begin by taking you through our presidency journey. As you know, we assumed the presidency of the G20 on the 1st of December last year, and we will conclude our presidency on the 30th of November this year. During the course of our presidency, we would have hosted over 220 G20 meetings in 60 different cities across the length and breadth of our country. In keeping with the Prime Minister's vision of a pan-Indian G20, we will have hosted one G20 meeting in at least one G20 meeting in every state and union territory of India. And to my mind, that is the finest example of cooperative federalism that we can see. Now, the effort has been, of course, to take the G20 down to the grassroots level through a process that we call Jan Bhagiyadari, which is a people's participation movement. And whether it is through the G20 University Connect or the G20 Model School or quiz, essay and painting competitions and festivals, the G20 has been popularized and taken down to the grassroots levels in our country. We have also looked at the G20 as an opportunity to highlight and showcase India's rich cultural heritage and diversity and our tourism potential. And in that context, we have hosted over 300 cultural events with the participation of over 18,000 of our cultural artists and exponents. Of course, we have also made our presidency an inclusive one. Sherpa has already mentioned that we've had very significant participation from the Global South and from Africa. प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वक्त ये बताया जा रहा है कि कैसे G20 को लेकर तैयारियां की गई हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं। और सीधा मैं विक्रांत का इस वक्त रुख कर लेती हूँ। विक्रांत, अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सुना कि बताया जा रहा है बाकायदा G20 कैसे जन भागीदारी के रूप में भारत में दिखाई दिया है और कैसे अलग अलग जगहों पर बाकायदा स्कूल कॉलेज में से लेकर के पेंटिंग कॉम्पिटिशन तक कराई गई। ये सारी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी हमने सुनी। मतलब आयोजन दिल्ली में जरूर हो रहा है, लेकिन हर कोई दिल से, भावना से इस G20 से जुड़ा हुआ है। देखिए, बिल्कुल इस बार के G20 की अगर हम बात करें, भारत को इसकी मेज़बानी मिली थी, भारत को इसके मेज़बानी का प्रेसिडेंशियल अध्यक्ष थे भारत, तो उस नाते एक बड़ी जिम्मेदारी हो गई थी। और जिस तरीके का आयोजन अब होने वाला है, क्योंकि कल से आधिकारिक रूप से G20 शुरू होगा, तो जिस तरीके का आयोजन आज झलक दिखाई दी है पूरे मीडिया सेंटर को हमने अपने दर्शकों को दिखाया। जो विदेशी मीडिया, देशी मीडिया यहाँ पर पहुँचा है, करीब 5,000 से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो यहाँ पर अलग अलग देशों से, अलग अलग मुल्कों से इसे कवर करने आएंगे। उन सब के लिए जिस तरीके के वर्ल्ड क्लास इंतजाम किए गए हैं, निश्चित तौर पर भारत पर जो उम्मीदें थी, भारत उस पर पूरी तरीके से खरा उतरा है। इस समय ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है भारत सरकार की G20 को लेकर, और आप देखिए कि मैं इस समय ग्राउंड फ्लोर पर हूं। मैं यहां पर बैठ करके भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन सकता हूं, देख सकता हूं। इस तरीके के इंतजाम यहां पर किए गए हैं। हालांकि जिस हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें करीब 300 लोगों के बैठने की वहां पर जगह है, इंतजाम किए गए हैं, यानी 300 करीब पत्रकार बैठ सकते हैं। इसके अलावा 2 और छोटे हॉल भी हैं, जिसमें 150 के करीब पत्रकार वहां पर आ सकते हैं। तो एक चीज हमारे दर्शकों को समझनी होगी कि G20 जब बना था, तो उस समय एक बड़ा चुनौती पूरी दुनिया के सामने थी। वो चुनौती थी आर्थिक मंदी की, और उस आर्थिक मंदी से पूरी दुनिया डील कर रही थी। और G20 का जब जन्म हुआ था, तो ये कहा गया था कि क्राइसिस से निकलने का नाम G20 है। दुनिया की 2/3 आबादी इन्हीं G20 मुल्कों में रहती है। दुनिया की 85%
की जीडीपी इन्हीं जो G20 के देश हैं यहां से निकलकर सामने आती है। तो ये कह सकते हैं कि G20 बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन हो जाता है। और ऐसे में जब भारत के में इसकी मेजबानी आई थी तो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती ये थी कि कोरोना से अभी अभी देश दुनिया बाहर निकली, और कोरोना में जिस तरीके से भारत ने दुनिया को लीड किया, भारत लीड लेते हुए दिखाई दिया। और पूरे कोरोना के टाइम पे चाहे वो वैक्सीनेशन का काम हो या दुनिया के दूसरे देशों को, छोटे देशों को, बड़े देशों को वैक्सीन देने का काम हो, तो एक तरह से क्राइसिस से निकालने का काम भी भारत ने किया। विश्व गुरु भारत को ऐसे ही नहीं कहा जाता, और जिस तरह से भारत ने अपनी भूमिकाओं को निर्वाह किया है वो बेहद ही काबिल तारीफ है। ये G20 का मेन मीडिया हॉल है जहां पर आप देखिए कि तमाम देशों के झंडे लगे हुए हैं। जो देश इस G20 के मेहमान देश हैं, साथी देश हैं, उनके यहाँ पर झंडे लगे हुए हैं और तमाम मेहमान यहाँ पर आने शुरू हो गए। आज दिन भर विदेशी मेहमान आएंगे और आज अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जैसे ही शाम को, माफ कीजिएगा, जिस बिल्कुल विक्रांत, एक तस्वीर सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है कि आखिर तैयारियां जो है वो किस तरीके की जा चुकी हैं। अब इंतजार है राष्ट्रपति जो बाइडेन का। लेकिन देखिए, G20 समिट के लिए ज्यादातर देशों के प्रतिनिधि भारत पहुंच चुके हैं। समिट के लिए राजधानी दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। समिट के वेन्यू भारत मंडपम में वर्ल्ड लीडर्स को भारत का इतिहास, लोकतांत्रिक परंपरा के साथ साथ डिजिटल ग्रोथ दिखाई जाएगी। और इसके लिए बकायदा भारत मंडपम के रिसेप्शन के पास एक प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें AI जैसी हाई एंड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। देखिए, एक और चीज जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि गीता, भारत को ज्ञान गीता ने दिया था और गीता ने किस तरीके से पूरी दुनिया के लिए ज्ञान है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। तो ये गीता की गाइडेंस इसके जरिए, मशीन के जरिए कैसे मिलेगी सर? गीता में सभी सूक्तियां हैं और गीता हम जानते हैं हमारा सबसे बढ़िया ग्रंथ है और तमाम भारतीय गीता से प्रेरणा लेते हैं, प्रभावित होते हैं और जब भी कोई समस्या आती है गीता में उसका समाधान ढूंढने जाते हैं। तो गीता जो ऐप है आस्क गीता, इस पे आप जाकर के अपना नाम, कोई भी आदमी कर सकता है, इसे डाउनलोड करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा? ये जाके इसमें अभी तो हमने आपको उपयोग के लिए दिखाया, इसमें जाकर के आप ये करिए। अब इसमें तमाम सवाल हैं, चाहे तो आप इन सवालों में से किसी सवाल को पूछ सकते हो या फिर आप अपने वॉइस के माध्यम से सवाल पूछिएगा, उसका जवाब आ जाएगा। तो जैसे हमने मान लीजिए पूछा कि जैसे ये प्रश्न है कि अगर मैंने ये क्वेश्चन किया कि डिस्पाइट ऑल माई एफर्ट्स आई फेस फेलियर, हाउ कैन आई ओवरकम सच प्रेशर, कि मैं बहुत प्रयास करता हूँ बट मुझे असफलता ही हाथ मिलती है, मैं कैसे उस तनाव को कर पाऊँ। तो ये मैंने मान लीजिए सवाल सेलेक्ट किया। तो आस्क गीता जो है इसका उत्तर ढूंढ रहा है और इसका उत्तर ढूंढ करके आपको इस प्रश्न का उत्तर दे देगा। देखिए क्या कहते हैं, ये श्लोक दे दिया किससे इसका उत्तर आ रहा है और फिर ये कह रहा है श्री कृष्णा सेज दैट ह्यूमंस हैव टू परफॉर्म देयर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज नो मैटर व्हाट रिजल्ट दे मे गेट। You have authority to control your deeds and your duties, but you cannot control the outcome of your deeds. So perform your actions for the sake of your duties without getting attached to them. If you give up the pride of the doership, success or failure will not affect your mind. Thus you can remain indifferent to success and failure. इसका जो हमारा बहुत फेमस श्लोक है, कर्मण्येवादी का करस्तु माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते सड़को स्वधिक कर्मणि। तो ये बेसिकली कहता है कि हमें कर्म करना चाहिए और कर्म का जो फल होगा उसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तो सफलता असफलता के कोई मायने नहीं रहेगी और हम अपने जीवन में तनाव से मुक्ति पा पाएंगे। तो सर ने दिखाया कि किस तरीके से गीता पर उन्होंने अपना सवाल देखा, लेकिन चूंकि मैं भी कोशिश करूंगा कि इसमें मैं अपना नाम डालकर भी एक बार कोशिश करूं, गीता में क्या मैं जानना चाहता हूं उससे पहले मुझे अपना नाम डालना पड़ेगा। तो आप ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कर सकते हैं, दोनों में आप ये कर सकते हैं या आप हिंदी या अंग्रेजी। तो अगर मैं इंग्लिश लेता हूं तो अंग्रेजी लेने में मुझे अपना पहले यहाँ पर नाम देना होगा और उसके बाद अपनी एज लिखनी है। अगर मैं यहाँ पर अपनी एज लिखता हूँ और उसके बाद जेंडर सेलेक्ट किया और ये अब सवाल आ गए हैं जो गीता से रिलेटेड या अपने जीवन से रिलेटेड मैं कोई भी सवाल इसमें जानना चाहूंगा तो इस तरीके से जवाब मिलेंगे। तो एक तरह से गीता का सार जो है वो डिजिटली दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये सवाल था आपका, माय फेलियर्स लीड मी टू फील अ सेंस ऑफ गिल्ट, हाउ कैन आई ओवरकम सच अ पेनफुल फीलिंग। तो इसका एक गीता का श्लोक से 38 नंबर का श्लोक से जवाब आ गया और इसको आपको पूरा जवाब मिल गया। तो आप इससे बारे में आप जाकर के हमेशा जब कभी परेशान हो, ये तनावग्रस्त हो,
तो अपने सवालों को गीता से पूछिए और गीता से उसका ज्ञान पाइए और जीवन में आपके जो तनाव होगा, जो परेशानी होगी, दूर हो जाएंगी। गीता के बारे में तो वैसे भी कहा जाता है कि जीवन की राह दिखाता है गीता की, कैसे लाइफ जीनी चाहिए आपको। तो एक तरह से आपके तनाव को, आपकी परेशानियों का सबका हल अब आपके डिजिटली आपकी उंगलियों पे आ गया है। टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके इसको आपको सरलता से मिल जाएगा। आपको गीता की पुस्तक नहीं ढूंढनी पड़ेगी, वहां जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप सीधे अपना सवाल लिख करके या वॉइस के माध्यम से पूछ सकते हो और आपको वॉइस पे जवाब मिल जाएगा। यानी केवल आपके दिमाग में जो भी सवाल आ रहा हो वो उससे मिलता जुलता सवाल आप केवल टच कीजिए और जवाब पाइए। बिल्कुल। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए गीता का आपको जवाब मिलेगा। तो ये पूरी तरीके से डिजिटल इंडिया में जो क्रांति आई है उसके बारे में इस पूरे हॉल में दिखाया गया है।